300 سال کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کرتے ہیں اسألک بحق محمد النبی الرحمہ، اے اللہ اب میں تجھے تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو رحمت والے نبی بن کے آئے ہیں، اللہ اس نبی کے نام کی برکت سے اب تو میرا کام بنا دے۔ حضرت آدم کہتے جب میں نے اتنا رب کی بارگاہ میں کہا، میرا رب فرمانے لگا یا آدم کیف عرفت محمدن ولم اخلقہ بعدہ، اے آدم تو نے میرے محمد کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے تو ابھی انہیں دنیا میں بھیجا ہی نہیں ہے، امتن بعد امتن وقرنم بعد قرن ونبیم بعد نبی حتی ینتہی الی نبی من ولدک یقال له محمد وہو خاتم النبیین، وہ نبی تو سب سے آخر میں آئیں گے، ابھی تو وہ نبی آئے نہیں ہے، ابھی تو میں نے بھیجا ہی نہیں ہے، ابھی تو وہ دنیا میں آئی نہیں ہے، سب سے آخر میں آنا ہے۔ اے آدم تو نے اس نبی کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے تو وجہ کیا ہے، تم نے کیسے جان لیا؟ حضرت آدم کہتے ہیں میں نے رب کی بارگاہ میں یہی جواب دیا ہے، یا خدا بندہ چومورا پیدا کردہ بودی دیدم برسا کہائے عرش وبر ابواب بہست وبر چشمائے حوران و غلمان نوشت بود لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ازاں جا دانستم کے محبوب ترین خلق نزد توس، اے اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے اس نبی کے نام کا جو وسیلہ پیش کیا ہے، وجہ صرف یہ ہے جب تو نے مجھے پیدا کیا میری آنکھ کھلی ہے، جب میں نے دیکھا ہے میں عرش کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں لا الہ الا اللہ لکھا تھا نا وہاں محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، میں جنت کے دروازوں پہ دیکھ رہا تھا جہاں تیرا نام لکھا تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام لکھا ہوا تھا، وبر چشمہ آئے حوران و غلمان، یا اللہ میں نے حوروں کے ماتھوں پہ بھی دیکھا ہے جہاں تیرا نام تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام تھا، اللہ میں جنت کو دیکھ رہا تھا، جنت کے محلات کو دیکھ رہا تھا، جنتی لوگوں کے جنتی محلوں پہ دیکھ رہا تھا جہاں تیرا نام تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام تھا، اے اللہ میں دیکھ رہا تھا جنت کے درختوں کے پتوں پہ بھی تیرا بھی نام تھا، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام تھا، عرش پہ نظر پڑی تیرا بھی نام ہے، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام ہے، میں لوح کو دیکھتا ہوں تیرا بھی نام ہے، تیرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا بھی نام ہے، ازاں جا دانستم کہ محبوب ترین خلق میں ستوس، میں نے جہاں جہاں بھی نظر اٹھائی ہے جہاں میں نے اللہ تیرا نام پایا ہے وہاں تیرے نبی حضرت محمد کا بھی نام پایا ہے، پھر میں نے یہی نتیجہ نکال پایا ہے جس نبی کے نام کو اللہ نے اپنے نام سے جدا نہیں کیا ہے نا، جہاں جہاں اللہ نے اپنا نام لکھا ہے وہاں وہاں اللہ نے اپنے نبی کا بھی نام لکھا ہے، میں نے پھر نتیجہ یہ نکالا ہے ازاں جا دانستم کہ محبوب ترین خلق نزد توس، میں نے نتیجہ یہ نکالا کہ یہ نبی اللہ کو ہر شے سے زیادہ پیارے نبی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے اللہ ازاں جا دانستم کے محبوب ترین خلق نزد توست، اے اللہ میں نے پھر نتیجہ نکال لیا یہ نبی تجھے ہر شے سے زیادہ پیارے نبی ہے، ہر مخلوق سے زیادہ پیارے نبی ہے، ساری کائنات سے زیادہ پیارے نبی ہے، ہر مخلوقات سے زیادہ پیارے نبی ہے، اس لیے اللہ میں نے تیری بارگاہ میں اس نبی کے نام کا وسیلہ پیش کیا ہے کیونکہ رب نے یا اللہ جن سے تو اتنا پیار کرتا ہے جب ان کا وسیلہ پیش کیا جائے پھر تو جلدی کام بھی بنا دیتا ہے۔ حضرت آدم کہتے ہیں اتنی بات جب میں نے رب کی بارگاہ میں بیان کی نا تو میرا رب فرما رہا تھا اے آدم توبہ ترا قبول کر دم، پھر وہ جو 300 سال سے دعا مانگ رہے تھے نا ہم نے اب قبول کر لی ہے، وہ جو 300 سال سے تم توبہ کے الفاظ بول رہے تھے اے آدم ہم نے تمہاری توبہ کو بھی قبول کر لیا ہے۔ اب یہاں پر صوفیاء کہتے ہیں بات چلائی تو حضرت آدم نے تھی پر بات میرے نبی کے نام کی عظمت کی تھی، بڑھائی میرے رب ذوالجلال نے ہے۔ فرمایا رب ذوالجلال قسمیں اٹھا کے اعلان کر رہا تھا اے آدم و عزت و جلال من ہر کے از اولاد تو توسل و او جوید، اے آدم مجھے میری عزت کی قسم ہے، رب فرما رہا تھا اے آدم مجھے میرے جلال کی قسم ہے، اے آدم مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے، ہر وہ بندہ جو تمہاری اولاد سے ہو، فرمایا جب آئے جس وقت آئے قیامت تک آئے جس گھڑی میں آئے گا، اے آدم جب بھی آئے گا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے گا جتنا بڑا مرضی مجرم ہوگا، جتنے مرضی گناہ کیے ہوں گے، جتنی مرضی خطائیں ہوں گی، جب بھی آ کر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے نام کا وسیلہ
वसीला पेश करेगा, मैं उसके गुनाहों को नहीं देखूंगा, मैं उसकी खताओं को नहीं देखूंगा, मैं उसके जुर्मों को नहीं देखूंगा। आखिरो ज़मान नबी के नाम की बरकत से ऊरा अमुर्जम व तौबा ऊरा कबूल कुनम, ऐ आदम मुझे मेरे रब होने की कसम है, मैं फौरन उसकी तौबा भी कबूल कर लूंगा, मैं फौरन उसके सारे गुनाहों को भी माफ फरमा दूंगा। अब ये है मेरे नबी के नाम की अजमत। और इसलिए मुहद्दिसीन कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब एक शख्स 200 साल उम्र पाता है, जुर्म ही जुर्म करता है, जब जिस्म से जान निकलती है और लोग उठाते हैं, उठा के अला मज़बला कूड़े के ढेर पे जाकर फेंक देते हैं। औहल्लाहु इला मूसा गस्सिलहु व कफ़िनहु, अल्लाह हज़रत मूसा की तरफ वाही फरमाता है, ऐ मूसा जल्दी करो, ये बंदा मेरा प्यारा है, वहां लेटा हुआ है, लोगों ने उठा के फेंक दिया है, जल्दी करो, इसे उठाओ, इसे गुस्ल दो, इसे कफन पहनाओ, इसकी तदफीन का एहतिमाम करो। हजरत मूसा जब रब की बारगाह में अर्ज करें, अल्लाह लोग कहते हैं इतना बड़ा मुजरिम है, तो रब एक ही जवाब दे, ऐ मूसा मुझे भी पता है इसके जुर्म बड़े हैं, मुझे भी पता है इसकी खताएं बड़ी हैं, पर अब नहीं है। ऐ मूसा एक दिन ऐसा हुआ, कुल्लमा नशरत तौरात व जादा इस्मा मोहम्मद, एक दिन इसने तौरात को खोला था, मेरे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के नाम को पाया था, चूम के आंखों पे लगाया था, मुझे भी पता है खताएं बड़ी थी, लेकिन मैंने नबी के नाम की बरकत से इसके सारे गुनाहों को मुआफ फरमा दिया है। वज़व्वजतुहु सबईना हूरा, मैंने उस वक्त से ही ऐ मूसा इसका 70 हूरों से निकाह भी कर दिया है। ये है वो मेरे नबी का नाम। इसलिए मुहद्दिसीन कहते हैं हजरत सैयदना अब्दुल मुत्तलिब रदी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे थे, मैंने नबी का नाम मोहम्मद रखा है, इसलिए रखा है, मुझे यकीन है इनकी तारीफ जमीन वाले भी करेंगे, इनकी तारीफ आसमान वाले भी करेंगे। जब जमीन वाले नाम नबी के गुण गाते हैं, जब आसमान वाले नाम नबी के गुण गाते हैं, हत्ता कि पत्थर को देखा जाए वो भी अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करता नजर आता है, हत्ता कि लकड़ी को देखा जाए वो भी शजरतुन इस्ताज़नत रब्बहा अन तुसल्लिमा अला रसूलिल्लाह की सदा बुलंद करती नजर आती है। आज माज़अल्लाह ऐसे भी लोग वाह हयात निकल पड़े हैं, कहते हैं नबी तो अनपढ़ थे, पढ़ना भी नहीं आता था, लिखना भी नहीं आता था। मैं कहता हूं इतना तो देखो, ये लिखना सबसे ज्यादा किसने लिखा है? हम पढ़ते हैं वो लौह है या कलम है, कलम ने सब कुछ लिख दिया है। मेरे नबी फरमाते हैं जिसने सब कुछ लिखा है ना, अल्लाह ने उसको भी मेरे नूर से पैदा फरमाया है। आज पढ़ना नहीं जानते, हम कहते हैं मेरे नबी के कदमों से पत्थर लगे तो वो भी पढ़ने वाले बन जाते हैं, मेरे नबी के कदमों से लकड़ी लगे तो वो भी पढ़ने वाली बन जाती है। मेरे नबी की बारगाह में ऊंट आए, ऊंट भी कहता है या रसूल अल्लाह ये ममालिक हैं, इन्होंने मेरे साथ ज्यादती की है, या रसूल अल्लाह हाज़ा बाइरुन हम्मा अहलुहु बिनहरिही व अक्ल लहमिही फहारबा मिनहुम, या रसूल अल्लाह मालकों ने खाने का पकाने का इरादा किया है, मैं दौड़ के आपकी बारगाह में आ गया हूं। जिनकी बारगाह में ऊंट भी पढ़ने वाले बन जाए वो नबी कितना कमाल पढ़ने वाले होंगे। अगर कहो कि नबी को पढ़ना नहीं आता था, फिर बताओ कुरान किस चीज का नाम है? नबी ने पढ़ा है तो हमारे सीनों में आया है। फिर बताओ हदीस किसका नाम है? मेरे नबी ने बयान किया है तो हमारे सीनों में आया है। और इसी तरह मुहद्दिसीन की कौल को पढ़े, मुहद्दिसीन कहते तुम कहते हो पढ़ना नहीं आता था, एक तो है ना सामने लिखा हुआ हो तो उसे पढ़ लिया जाए, एक है जो क़यामत वाले दिन लिखा हुआ है तो पहले पढ़ के बता दे। फरमान लगे मेरे सहाबा मैं देख रहा हूं कुर्बे क़यामत दज्जाल आएगा, उसके माथे पे जो लिखा हुआ होगा मेरे नबी ने एक एक लफ्ज का भी बता दिया है, एक एक हर्फ का भी बता दिया है। जो अभी सामने लिखा हुआ आया नहीं था वो जब नबी पढ़ के बता रहे हैं तो फिर लफ्ज उम्मी का मतलब यही निकलता है लोगों, जब इस लफ्ज की निस्बत मेरे नबी से हो जाए तो फिर मतलब अनपढ़ नहीं बनता है, बगैर पढ़े सब कुछ जानने वाला बनता है। अल्लाह ने मेरे नबी को भेजा है, मेरे नबी अनपढ़ नहीं है बल्कि बगैर पढ़े सब कुछ जानने वाले हैं। इसलिए मुहद्दिसीन ने कहा लफ्ज उम्मी मेरे नबी की शान है, मेरे नबी की शान है। जो मुकद्दर पढ़ ले, जो मुकद्दर लिख दे, जो नसीब लिख दे, उनसे ये छोटा सा कलम कैसे नहीं चलाया जा सकता। इसलिए मुहद्दिसीन कहते हैं हुदैबिया के मौका पर जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुआहदा तहरीर फरमाया, हजरत अली ने लिखा, अब जब आगे अल्लाह का रसूल लिखा हुआ था वो कुफार के लगे इसे मिटा दे, यही तो हमारा इख्तिलाफ है। मेरे नबी ने हजरत अली को हुक्म दिया, ए अली ये मिटा दो। हजरत अली अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं ये आपका नाम मिटाऊं। आगे मेरे नबी ने अपने हाथों से जो तहरीर लिखी, सूफिया कहते हैं गोया मेरे नबी ये लिख के बता रहे थे
अल्लाह ने मुझे भेजा है, मैं लिखना भी जानता हूं, मैं पढ़ना भी जानता हूं। फिर सवाल पैदा होता है, ये उम्मी का मतलब हमने तो अनपढ़ ही समझा है, हर कोई अनपढ़ ही लिखता है। तो सूफिया कहते हैं जब इस लफ्ज की निस्बत मेरे नबी से हो जाए तो फिर अनपढ़ नहीं रहता, बगैर पढ़े सब कुछ जानने वाला होता है। तो कहने लगे फिर लफ्ज उम्मी बोला क्यों गया है? मुहद्दिसीन कहते हैं इसलिए बोला गया है कि मेरे नबी ने दुनिया से किसी से नहीं पढ़ा, दुनिया में मेरे नबी ने किसी से नहीं पढ़ा। पढ़ाने वाला भी रब है, सिखाने वाला भी रब है, बताने वाला भी रब है, इसलिए मेरे नबी दुनिया में आए हैं। फिर सवाल पैदा होता है मेरे नबी ने कुरान क्यों नहीं लिखा? सूफिया मुहद्दिसीन कहते हैं इसलिए अगर मेरे नबी अपने हाथों से लिख के देते तो हो सकता है शक भी हो जाता। कुरान की आयत को पढ़े तो उसमें भी यही है कि शक करने वाले इतराज करते कि देखो पढ़ते भी खुद हैं, लिखते भी खुद हैं। इसलिए मेरे नबी ने पूरी जमात बनाई हुई थी, वो सारे मेरे नबी से सुनते जाते। महबूब के प्यारे कलाम मेरे नबी की जुबान मुकद्दस से निकलने वाले हर लफ्ज को लिखते भी जाते थे, तो गोया ये वाज़ेह कर रहे थे ये कलाम अज़ली है, अबदी है, हमेशा से है, हमेशा रहने वाला है। जब कुछ न था तो भी ये कलाम था, ये था थी थे न थे तो भी ये कलाम था। इसलिए अल्लाह ने मेरे नबी अलैहिस्सलाम को जहां रसूलों का सरदार बना के भेजा है, वहां महबूब को अल्लाह ने उम्मी भी बना के भेजा है। उम्मी मेरे नबी की शान है। इतना जानते हैं कि बैठे तो जमीन पे होते हैं, खबर अर्श बरी की अता फरमा देते हैं। और इसलिए सूफिया कहते हैं एक और भी बात बड़ी कमाल की है। सूफिया कहते हैं रब ने जो फरमाया ला तक़ूलू रायना, ऐ ईमान वालों रायना ना कहो। अब रायना का मतलब तो ये हमारा ख्याल रखिए, पर क्या वजह है? सूफिया कहने लगे इसमें एक हिकमत ये है, ये अगर रायना को बाबे मुफाला से बनाया जाए, जिस तरह मुसाहफा, बंदा एक हाथ बढ़ाए दूसरा भी हाथ बढ़ाए तब मुसाफा बनता है ना, नतीजा क्या निकला? मुफाला से लिया जाए तो इसमें माना बराबरी वाला होता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने मना फरमा दिया कि ऐसा माना, ऐसा मतलब जिसमें बराबरी हो वो मेरे नबी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हो सकता है सहाबा तो अर्ज करें या रसूल अल्लाह ये अर्जी है, पर मुनाफिक कहें जिस तरह हम आपका ख्याल रखते हैं उसी तरह आप भी हमारा ख्याल रखें। रब ने ऐसे जुमलों को जब मना फरमा दिया है, अगर उम्मी में ऐब वाला मतलब होता तो रब फौरन ही मना फरमा देता। नतीजा ये निकलता है इसमें ऐब वाला माना नहीं है, नबी की शान को घटाने वाला माना नहीं है। लिहाजा ईमान वाले का हक बनता है हमेशा ऐसा लफ्ज जिसमें मेरे नबी की अजमत का बयान या अजमत का पहलू नजर आता हो, उसी लफ्ज को ही तलफ़्फ़ुज़ किया जाए, वही मतलब लिया जाए। क्योंकि अल्लाह ने महबूब को दुनिया में भेजा है तो बेऐब बना के भेजा है। अल्लाह ने बेहिसाब शानें अता फरमाई हैं। हमारा हक नहीं बनता है कि हम नबी की शानों का अशानों के अंदर ऐब तलाश करें या फिर हिसाब लगा सके। बस सुन्नी का हक क्या है, सुन्नी इतना नारा लगाए हम नबी की शान तोल तोल के नहीं सीना खोल के मानते हैं। रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में दुआ है या मुख्तसर से लम्हे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए।